students. Today we will do Maths 2 practice set 1.3. The first question is, in an adjoining figure, angle ABC is 75, ABC is 75, angle EDC is 75. These two angles are 75. We have to prove that these two triangles, triangle ABC and triangle EDC, both are similar. So let's see. In triangle ABC and triangle EDC. In both these triangles, what is given is angle ABC is congruent to angle EDC. This is given. Okay. Now the second thing is, this angle C, angle C is common in both the triangle. कॉमन है, ये दोनों के लिए है. ए बी सी के लिए भी कॉमन है और ई डी सी के लिए भी कॉमन है. तो अपन बोलेंगे एंगल सी, आई कैन कॉल इट एंगल ए सी बी ऑल्सो एंड ई सी बी ऑल्सो. आइदर वे यू कैन कॉल इट. एंगल ए सी बी is congruent to what? Angle ECD. Okay. Why? Because this is common angle. If this is common angle, I can say that both these triangles are similar. अगर दो भी एंगल congruent होते हैं ट्राइंगल के, then the triangle is similar by a test of similarity. For similarity. Okay, I think we have completed the first one. Now move on to the third one. Second is the homework. In the third one, it is given that, as shown in the figure, two poles are there. One is of 8 meter and another is of 4 meter, and they are perpendicular to the ground. Okay, there is no figure. Up suppose this, let PR and AC represent the pole. Let PR and AC represents, this is the solution, the pole of length. And what is the length? Length is 4 meter and 8 meter respectively. Means PR is 4 and AC is 8. Okay. Now, if this represent the pole, this is a shadow. QR और BC क्या है? उसका shadow है. क्या है? उसका shadow है. मैं बोलूंगा let QR and BC represent the shadow, the length cast by the pole. Means उसका shadow, length cast by the poles. Okay. At same time, एक ही वक्त पे दोनों का शेडो कास्ट हुआ पोल का, वो इसका QR है, इसका BC है. ठीक है. अब द नेक्स्ट थिंग इज,
Now in triangle, two triangles are there. In triangle, are this triangle similar? I can directly write it similar. PQR is similar to ट्राइंगल ए बी सी. क्यों? क्योंकि शेडो कास्ट एट सेम टाइम. लिखो, शेडो कास्ट एट सेम टाइम. अभी किसी का भी, कोई भी दो पोल का या किसी का भी शेडो सेम टाइम पे कास्ट होएगा तो वो एंगल उसके जो होते हैं कॉन्ग्रुएंट होते हैं, यानी कि ये एंगल इसको कॉन्ग्रुएंट होगा एंड दिस इज 90. दैट मीन्स इट ऐसे दोनों क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे. क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे. इफ दिस इज सिमिलर तो अपन क्या बोलेंगे? अपने को चाहिए क्या? यहां पे मुझे चाहिए BC. एक्स है ना जो BC. अब कैसे मिलेगा BC? ओके, लेट्स सी. इसका PR मेरे को गिवन है, ठीक है, तो मैं यहां PR लूंगा. PR फर्स्ट थर्ड लिया तो यहां पे फर्स्ट थर्ड क्या है? AC. ओके, इसका AC इज गिवन. यहां पे दूसरा गिवन है QR. लास्ट टू इज QR. ओके, यहां पे लिखेंगे BC. दीज आर नथिंग बट करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल. CSST मीन्स करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल. ओके, नाउ इसका कितना दिया है? 4, इसका 8, इसका 6, इसका BC नहीं मालूम. 4 1 जा, 4 2 जा. ओके, नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई. 1 into BC, 6 into 2. Therefore BC is what? 12. BC is 12 meter. 12 meter. Length of shadow cast, length of the shadow cast or casted by longer pole is 12 meter. 12 meter. Okay, we have done this third one. Now we will move to the fifth one. Let's move to the fifth one. This is the fifth one. Okay, in fifth one, what is given? Given is what? This is a trapezium. Okay, it's a trapezium. Now PQ is parallel to SR. This is given. Again, what is given is AR. This AR is 5 times AP. 5 times AP. Okay, then AQ is also AS is 5 times AQ. AS is 5 times AQ. Okay, these two things are given. I have to prove that SR is 5 times PQ. Okay, let's see how to prove. First, what is given? Given is what? AR is equal to 5 AP. This is given. This is given. Okay, and when this is given, I can say that ये AR तो इधर था ही, ये AP इधर आके डिवाइड किया तो इसका रेशियो क्या मिला? 5/1. इसका रेशियो मिल गया. ओके, दिस बिकम्स 5/1. इसको बोलो फर्स्ट. अब दूसरा क्या दिया था? दूसरा दिया था AR का हो गया, AS का भी. AS इज इक्वल टू 5 AQ. ओके, तो ये हो जाएगा AS इधर था ही, ये AQ उधर आके डिवाइड किया तो ये हो जाएगा 5/1. ये हो गया सेकेंड. नाउ दिस टू आर इक्वल. टू आर ratios of 2 are equal. That means if I take in triangle, दो ट्राइंगल लेंगे. एक ट्राइंगल ASR, ये वाला ट्राइंगल लेंगे,
और दूसरा ट्राइंगल AQP। ये दो ट्राइंगल लेंगे, एक छोटा एक बड़ा। ASR बड़ा वाला ट्राइंगल, AQP छोटा वाला ट्राइंगल। ओके, एंड ट्राइंगल AQP। ओके, ये दो ट्राइंगल के अंदर आई गॉट दिस टू इक्वल ratios equal. AR upon AP is equal to AS upon AQ. Okay, from first and second, from first and चलो फर्स्ट एंड सेकेंड सही हो गया। अब इफ आई से दिस एंगल एंड दिस एंगल, दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। कौन सा एंगल है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो SAR is congruent to angle, कौन सा एंगल? QAP। QAP। ओके, these are vertically opposite angle। तो लिखो vertically opposite angle, vertically opposite angle। ठीक है, अब ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ओके, अब उसके बाद अपन दोनों ट्राइंगल किससे सिमिलर हो जाएंगे? दोनों ट्राइंगल, हाँ, कौन सा ट्राइंगल? ASR सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल AQP को बाय SAS टेस्ट, बाय SAS टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी। ओके, अब ये दोनों हो गए सिमिलर। तो अब इसका देखो लास्ट वाला SR, जो SR चाहिए यहाँ पे मुझे, लास्ट के दो लेंगे तो यहाँ SR है और यहाँ पे PQ है, यहाँ पे PQ है। ठीक है, QP PQ की बात है, QP एंड PQ इज सेम। ओके, तो SR QP और PQ ये क्या बराबर नहीं होगा? किसको किसको बराबर होगा? ये AR और AP को, AR और AP को। क्यों बराबर होगा? बिकॉज दे आर करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ओके, अब मुझे ये तो नहीं मालूम, बट आई नो द रेशियो ऑफ दिस। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो देयरफॉर आई विल गेट SR इक्वल टू 5 PQ। दिस इज प्रूफ्ड। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 1 को इससे मल्टीप्लाई किया, 5 को इससे मल्टीप्लाई किया, मिल गया। ओके, नाउ आई विल जस्ट रीड द क्वेश्चन फॉर यू। आई हैव ड्रॉन दिस डायग्राम in next page also for better understanding. Just see the question now. It's a very important question. ABCD is a parallelogram. Okay, it's a parallelogram. Point E is on side BC, BC पे है। अब लाइन EDE जो है इंटरसेक्ट कर रहा है AB को, ये एक्सटेंड कर दिया, ये एक्सटेंड कर दिया, ये एक्सटेंड करके कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है? T पे, पॉइंट T पे। मुझे प्रूफ करना है कि BE DE और BE को मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट शुड बी इक्वल टू CE एंड TE। ओके, लेट्स सी, ये प्रूफ करना है। I have with me the diagram. Okay, I have that diagram drawn in next page also for better understanding. Now I can continue with this solution of this question. Solution. First I will write कि ABCD is nothing but a parallelogram. Is a parallelogram. Okay, this is the sign of parallelogram. Okay, it's given. It's given. अगर ये गिवन है तो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल। तो AB पैरेलल होगा CD को। ओके, और सेगमेंट इसको बोलो अपोजिट साइड्स ऑफ parallelogram. Okay, I am writing the short form. तो अब AB is what? AB is AT. AB is
AT, if AB is parallel then AT can be also be parallel ना, वो straight ही line गया है तो AT is also parallel to what? AT is also parallel to what? AT is parallel to CD, segment CD. Okay, क्यों? क्योंकि A, B and T is collinear. Okay, now we will say then if this is parallel and I can take a transversal. कौन सा transversal ले सकते हो बताओ? अगर ये और ये parallel है तो what you can take a transversal is BC. क्या ले सकते हैं? BC ट्रांसवर्सल ले सकते हैं. ओके, BC ट्रांसवर्सल ले सकते हैं. अगर BC ट्रांसवर्सल लेते हैं तो अपन क्या प्रूफ कर सकते हैं? ATD ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और CDE और CDT भी बोल सकते हैं ये वाला एंगल. ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. क्यों? अल्टरनेट एंगल से. क्या है? अल्टरनेट एंगल से. तो अगेन आई विल राइट segment AT is parallel to segment CD and BC is transversal and BC is transversal. Okay, if this is transversal then what will happen? मैं डॉट मारता हूं वो एंगल पे. BTD, BTE भी बोल सकते हैं, BTE बोलो या BTD बोलो या ATD भी बोल सकते हैं. ATD ये वाला एंगल ATD और CDT ये वाला एंगल. ये जो डॉट वाला एंगल है ये कॉन्ग्रुएंट है. क्यों कॉन्ग्रुएंट है? बिकॉज दे आर अल्टरनेट एंगल्स. ATD कॉन्ग्रुएंट टू CDT, अल्टरनेट एंगल्स. ओके, अब ATD क्या होता है? ATD इज नथिंग बट BTE. अरे भाई ATD बोलूं या BTE बोलूं एक ही एंगल है. एंगल विद डिफरेंट नेम, एंगल विद डिफरेंट नेम. तो मैं बोलूंगा BTE कॉन्ग्रुएंट टू CD. देखो CDT बोले तो CDE बोल देंगे. हाँ, क्यों बोले? क्योंकि क्यों बोले? ये ABT ये कोलिनियर है एंड अगेन TED भी कोलिनियर है. ओके, इसका रीजन ये है. और सेम एंगल विद डिफरेंट नेम भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिखो इसमें. इसको फर्स्ट मैं बोलूंगा फर्स्ट वन है. अब दो ट्राइंगल ले लूंगा. इन ट्राइंगल दो कौन से ट्राइंगल लेंगे? ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल. ठीक है, जस्ट थोड़ा नीचे ले लेता हूं. BTE और CDE ये दो ट्राइंगल ले लेते हैं. चलो, इन ट्राइंगल BTE वापिस नीचे लेना पड़ेगा एंड ट्राइंगल CDE वापिस देखो BTE CDE ये दो ट्राइंगल. ये दो ट्राइंगल में सबसे पहला तो मेरे को जो दिया है अल्टरनेट एंगल मैंने प्रूफ किया है वो लिख देता हूं. क्या प्रूफ लिखा था मैंने? BTE कॉन्ग्रुएंट टू CDE. इसको बोलो फ्रॉम फर्स्ट. ओके, ये तो प्रूफ किया था मैंने, ये डॉट डॉट वाला अल्टरनेट एंगल वाला. ठीक है, दूसरी चीज मैं अभी प्रूफ करूंगा. मैं तुम्हारे को दिखा देता हूं पहले कि दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल. ठीक है, क्या है ये? वर्टिकली अपोजिट एंगल. तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा है? BET CED, BET CD, BET कॉन्ग्रुएंट टू CED. ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल.
अब ये दोनों चीज मिल गया, दो चीज मिल गया, तो इजीली आई कैन से बी टी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल CDE by a test, test for similarity, a test for। अब ये हो गया तो इजीली मैं उसको अभी अपॉन में लेता हूं, उसका रेशियो करस्पॉन्डिंग सेट। मेरे को क्या चाहिए था, देखो यहाँ पे BE चाहिए, तो मैं पहले यहाँ BE लेता हूं, यहाँ पे BE है, BE लिया, फर्स्ट थर्ड लिया ना, फर्स्ट थर्ड लिया, तो यहाँ फर्स्ट थर्ड क्या है CE। दूसरा क्या चाहिए था भाई, दूसरा मुझे चाहिए DE चाहिए, तो DE लास्ट टू है यहाँ पे, तो यहाँ पे लास्ट टू क्या है TE, यहाँ पे DE, ओके, लास्ट टू। करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या करो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो DE पहले आ गया यहाँ पे, यहाँ मल्टीप्लाई हो गया BE से, ठीक है, और यहाँ पे CE पहले आ गया, मल्टीप्लाई हो गया TE से। यही चाहिए था, देखो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो DE मल्टीप्लाई बाई BE, CE मल्टीप्लाई बाई TE, हो गया प्रूफ। नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट सम, दैट इज 8th सम। 8th सम पे जाएंगे। एथ सम में ये दो ट्राइंगल गिवन है, वी हैव टू प्रूव दैट दे आर व्हाट सिमिलर। हाउ टू प्रूव दैट दे आर सिमिलर? ओके, लेट्स स्टार्ट। इन ट्राइंगल ABP and triangle CDP, ओके, बोथ ट्राइंगल में वो क्या दिया है, पहला दिया है भाई कि दोनों का दिस आर गिवन रेशियोज, ये कॉन्ग्रुएंट है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो का कॉन्ग्रुएंट है, ओके, DP ना, ये गिवन है, ये क्या है गिवन है, ओके, दिस इज गिवन। तो दूसरा क्या अपन प्रूफ कर सकते हैं यहाँ पे, दिस आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, APB, इसका APB और इसका CPD, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। इफ दिस, ये दो चीज हो गया, दो साइड हो गया, एक एंगल हो गया, तो आई कैन से दिस ट्राइंगल इज सिमिलर बाय विच, दिस ट्राइंगल इज सिमिलर बाय SAS टेस्ट। दो साइड हो गया ना, तो SAS टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी। नाउ द लास्ट वन आई विल डू इन दिस एक्सरसाइज, and that is 9th one, okay, this is the last one I will do it for you। अब ये फिगर में देखो ABC है, D पॉइंट है BC पे, such that BAC is congruent to ADC, okay, ये गिवन है। अब मुझे दो ट्राइंगल लेना पड़ेगा यहाँ पे प्रूफ करने के लिए, सोल्यूशन लिखता हूँ यहाँ पे पहले। इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ABC पूरा, ओके, एंड ट्राइंगल DAC, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, पूरा और ये वाला। अब दोनों में मैं क्या, फर्स्ट इज गिवन फॉर मी BAC, ये इसका, और ADC इसका, द फर्स्ट इज गिवन फॉर मी, तो आई विल राइट इट गिवन एंगल BAC is congruent to angle ADC, this is given, okay, I wrote given। अब दोनों में एक एंगल कॉन्ग्रुएंट है, कॉमन है, कौन सा कॉमन है, ये डॉट C, एंगल C, तो इसको ये ट्राइंगल में क्या बोलेंगे, BCA, क्या बोलेंगे,
एंगल BCA congruent to angle ACD, common angles. ओके, अब ये कॉमन एंगल था, दो एंगल तो हो गए, तो अपन इजीली बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DAC बाय AA टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी, ठीक है, सिमिलर हो गया। अब सिमिलर हो गया तो अपने को क्या करना है, इसके लिए जस्ट आई हैव टू CA का स्क्वायर आना चाहिए, ऐसा कुछ करना है, ठीक है। तो CA का स्क्वायर आना चाहिए, तो CA यहां पे भी होना चाहिए, यहां पे भी होना चाहिए, एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में। तो यहां पे CA आने के लिए मैं AC कर दूंगा यहाँ पे फर्स्ट, ये हो गया CA, तो यहां पे आ जाएगा CD, है ना, फर्स्ट थर्ड। अब यहाँ पे CA कैसा आएगा, लास्ट टू है, तो यहाँ पे लास्ट टू क्या है, CB, है ना, CB, तो यहाँ पे CA, देखो वापस लास्ट टू यहाँ पे CB, लास्ट टू CA, फर्स्ट थर्ड AC था तो CA कर दिया, CD कर दिया। हाँ, इसको बोलेंगे करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो AC इंटू AC, CA इंटू CA और CB इंटू CD, तो ये हो गया CA का स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। यही चाहिए था क्या, CA इंटू CD, सॉरी, CA इंटू CD, ओके, यही चाहिए था ना, ओके, फिनिश। This is completed. I think it's enough.